ओआईसी आज पाकिस्तान की बदहाली पर चुप बैठा है। पाकिस्तान की जब आतंकवाद पर पोल खुली तो ओआईसी ने फिर एक बार आंख बंद कर ली, मुंह पर ताला लगा लिया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो एयर स्ट्राइक है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हुई है। हालांकि ईरान ने कुछ ही देर बाद इस जानकारी में कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया से इस इंफॉर्मेशन को हटा दिया है। आपको बताएं कि जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना और ये उसने भी लिया। हम यह बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं, जिसका अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धोखा दिया और पूर्व सरकार के साथ ज्यादती की। उसी सरकार के उपराष्ट्रपति ने आज पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई। अफगानिस्तान के पूर्व বন্ধুরা, পাকিস্তানের উপর ইরানের তরফ থেকে জবরদস্তভাবে এয়ার স্ট্রাইককে করা হয়েছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের আতঙ্কবাদীদের ইরানের তরফ থেকে সম্পূর্ণ ভূত বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা ইরান স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে তারা যে সমস্ত আতঙ্কবাদীদের পুষে রেখেছিল তাদেরকে উড়ানোর জন্য আমরা এই এয়ার স্ট্রাইকটিকে করেছি। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে 57টি ইসলামিক দেশের যে বিরাট সংগঠন আছে, হ্যাঁ বন্ধুরা, সেই দেশের তরফ থেকে মানে ওআইসি সংগঠনের তরফ থেকে একটাও স্টেটমেন্ট সামনে বেরিয়ে আসেনি পাকিস্তানের উপর যে এত বড় হামলা হয়ে গেল, তার উপর তারা কিছুই বলেনি। কেননা ওই সংগঠন তো একটি দেশ তাদেরই উপর হামলা করেছে, তাই তারা এখন চুপ। এখানে সব থেকে হাসির আর ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই যে এই কাজটা যদি আজকে ইরানের বদলে ভারত করতো তাহলে এই বিড়াল মানে ওআইসি সংগঠন থেকে অনেকগুলো স্টেটমেন্টকে আপনারা দেখতে পেতেন, যেগুলো সব থাকতো অ্যান্টি ইন্ডিয়া। সাথে তারা এটাও বলতো যে হাই আল্লাহ, ভারত পাকিস্তানের উপর এটা কি করে দিল, আল্লাহ পাকিস্তানকে বাঁচাও। বন্ধুরা, এখন গোটা বিশ্বের সামনে যখন পাকিস্তানের আসল চরিত্র বেরিয়ে আসছে, যখন তাদের জাত ভাই তাদেরকে ঠোকাই করছে, এটা দেখে কি বিড়াল সংগঠন মানে ওআইসি কি চুপ থাকা একদম সঠিক বলে তারা সব থেকে বেটার বলে মনে করছে? কিন্তু যদি আজ এই কথাটা ভারত বলতো যে পাকিস্তান আজ গোটা বিশ্বের মধ্যে আতঙ্কবাদীকে সাপ্লাই করছে, তারা তৈরি করছে, তাহলে কখনো এই ওআইসি সংগঠন মানে বিড়াল সংগঠন বলতো না না, পাকিস্তান এমন কাজ করতেই পারে না। কেননা আপনারা জানেন ইতিহাস থেকে বর্তমান দিনে সাক্ষী আছে গাদ্দার কারা, থালাই ফুটো কারা করে। এই মুহূর্তে তো পাকিস্তান সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছে, কেননা তাদের যে সমস্ত পুত্রগণ আছে তারাও তো কনফিউজ, তারা ভয়ে কাউকে সাপোর্ট করবে সেটা এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। আর এই মুহূর্তে ইরান যেভাবে পাকিস্তানকে কোটাই করছে, তাদের পাকিস্তানিদের সমস্ত হাওয়া বেরিয়ে গেছে। কেননা পাকিস্তান যদি রিটালাইট করে তাহলে এই হামলারও বড় হবে, আর এতে না কোনো ওআইসি বিড়াল সংগঠনের মেম্বার তাদের সাহায্য করতে আসবে। এখানে যদি কথা বলি আফগানিস্তানে, তো আফগানিস্তানে যখন সরকার ছিল তখন সেখানকার রাষ্ট্রপতি যিনার নাম ছিল আব্দুল্লাহ সালেহা, উনি হেসে হেসে পাকিস্তানের মজাক উড়াচ্ছে। কেননা যে আতঙ্কবাদীদের পুষেছিল পাকিস্তান অন্যের ক্ষতি করার জন্য বা অন্যের ক্ষতি করেছে, এই সমস্ত আতঙ্কবাদী তাদেরই এখন ক্ষতি করছে, প্লাস তাদের জন্য বাইরেকার দেশে এসে তাদেরকে ঠোকাই করে দিয়ে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, চলুন দেখে নিই পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি চলছে। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धोखा दिया और पूर्व सरकार के साथ ज्यादती की। उसी सरकार के उपराष्ट्रपति ने आज पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ईरान द्वारा पाकिस्तान के क्षेत्र पर किए गए हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान पर कटाक्ष किया, उसका मजाक उड़ाया और ट्वीट करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का दृष्टिकोण और मोहम्मद जियाउल हक का संशोधनवाद सभी लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने पढ़ा कि ईरान ने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में जैश अदल आतंकवादी समूह के खिलाफ मिसाइल हमला किया है। महान और साहसी कदम। काश हमारे पास क्वेटा शूरा को निशाना बनाने की ऐसी क्षमता होती जब वो 20 से ज्यादा सालों से वहां मौजूद थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं रावलपिंडी में जीएचक्यू की भावनाओं की कल्पना कर सकता हूं। जनरल मुशर्रफ ने मेरे साथ अपनी प्रसिद्ध मुठभेड़ में कहा था कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जहां आप अपने एजेंट्स को भेज सकते हैं और फिर हमें बताएं कि ओसामा बिन लादेन यहाँ है। हम रिसेंटली वो यूएई गए, सऊदी अरब गए, कुवैत गए, वहां से भी कुछ नहीं आया। तो ये जो यूरोपियन मार्केट्स को हम बताने गए हैं डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका जो मेजर एजेंडा है इस वक्त डेवोस के वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर है। तो हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में तो खुद डिसइंफॉर्मेशन बढ़ी, हमने तो वो काजी साहब को बचाने के लिए कमीशन बना दिया। हजूर, किसी को इन्होंने क्या एक्सप्लेन करना है? इनके पास को है कोई फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मुंह कौन लगाता है? जहां पहले गए मिला इनसे कोई बंदा आज तक? मैं बैठना चाहता हूं काकड़ साहब, मुझे बता दें आज तक कोई सिग्निफिकेंट किसी बंदे के साथ इनकी मीटिंग हुई हो?
चाहे न्यूयॉर्क आए हो, चाहे ये इंग्लैंड हो, चाहे किसी, क्योंकि लोगों को पता बंदा, द मैन हैज नो मैंडेट, ही वाज सिलेक्टेड, ही वाज नॉट इलेक्टेड टू बिगिन विद। और दूसरा, पाकिस्तान के जो हालात है उसमें क्या, मैं बल्कि इसमें छोटी सी, अगर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं छोड़ें, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े के, पता नहीं मोदी का कोई रिश्तेदार है। मैं मेरी उसके साथ, मोदी साहब के साथ क्या, और मैं तो ये कहता हूं मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया, तुम्हें नेशनलिज्म की जरूरत है। मैं आज आपको इंडिया की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये आपके लौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा कंपेरिजन देना चाहता हूं। मैं आज बांग्लादेश के बारे में खबर पड़ी, जरा देखें बांग्लादेश में पाकिस्तान, और जरा कंपैरिजन 1 सेकंड में करके आपको बताता हूँ। काकड़ साहब को पता होना चाहिए, ये हालात है तो आप क्या बेचेंगे वहां जाके, चूरन बेचना है वहां जाके। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी जीडीपी 416 बिलियन है, आपकी जीडीपी 341 बिलियन है। आपकी पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन 172 मिलियन, आपकी 241। एक्सपोर्ट उनकी 59 है, आपकी 40 बिलियन है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5% है। इन्फ्लेशन वहां हालांकि ज्यादा है, 9.4% है, आपके 30% है। आपकी उनकी पर कैपिटा बांग्लादेश की इनकम $2457 है, आपकी $1505 है। लिटरेसी रेट उनका 74% है, आपका 62% है। और आपके साथ 70s तक आपके साथ थे वो। आपने जान छुड़ाई है, आप बार बार 50 से कहते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ है, इनको उतारो, इनको बोझ है, हमारे उतारो। आज मुझे लग रहा है कि आपको अफगानिस्तान भी बोझ लग रहा है। आप करते जो कुछ नहीं है, आप सड़क पेपरों में सड़कें बना के आप खा जाते हैं, बलूचिस्तान की सड़क फाइलों में, अस्पताल में बना के खा जाते हैं। आपको सबको पता है जो हो रहा है। मेरे हाफिज साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने कहा था मैं रोकूंगा स्मगलिंग, किसी को पकड़ा इन्होंने स्मगलिंग करते हुए? कोई खबर देखी, सुनी आपने कि फलां को पकड़ लिया इन्होंने वहां से स्मगलिंग करते हुए? हाँ, ये जैश अदल पे जो अटैक ईरान ने किया, ये एक ज्यादती है कि स्मगलिंग 4 दिन स्लो हो जाएगी, ये मेहरबानी उन्होंने की है। और क्या होना वहां पर? चीमा साहब, तरह हकीकत मैं आज आपको छोटी सी बात, दो चीजें ऐड करना चाहूंगा जो मेरे ज़हन में आई। मेरे अगर काकड़ साहब ने जाना था, सबसे पहले तो होमवर्क करके जाते। पाकिस्तान में ईरान ने मचाई जबरदस्त तबाही, ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से थर्राई पाकिस्तान की धरती। जलते पाकिस्तान की हालत पर साधरी ओआईसी ने चुप्पी। अरब में लगी आग पर अब क्यों चुप बैठ गए हैं ये 57 देश? जिस पाकिस्तान के लिए ओआईसी बात बात पर भारत के आगे मुंह खोलता है, वो ओआईसी आज पाकिस्तान की बदहाली पर चुप बैठा है। पाकिस्तान की जब आतंकवाद पर पोल खुली तो ओआईसी ने फिर एक बार आंख बंद कर ली, मुंह पर ताला लगा लिया। शायद इसलिए कि हमला करने वाला ईरान था, और यह हमला ईरान ने इसलिए किया क्योंकि वहां आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। खुद को इस्लाम का रक्षक बताने वाला ओआईसी इस्लामिक देशों में मचे बवाल पर आंख बंद करके बैठ गया है। लेकिन वहीं जब बात भारत की हो तो ये बात बात पर बीच में कूद पड़ता है। भारत में जब सरकार ने 370 हटाया तो यही ओआईसी मसीहा बनकर कूदा, और तब तो कश्मीर में हालात हिंसक तक नहीं थे। कि जैसा मैंने एक सवाल उठाया, ये बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहां पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात होती है उनके अथॉरिटीज के साथ, ईरान की अथॉरिटीज की। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि वहां पर पाकिस्तान का वजीर आजम ईरान की अथॉरिटीज से मिल रहा है और ईरान जो है वो वहीं पर हमला कर रहा है। अब इस तस्वीर में आप देख सकते होंगे कि ये जो ईरानी भाई साहब हैं, इनकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि कुछ होने वाला है। यानी वो जिस तरीके से ये बात सोशल मीडिया पे की जा रही है, वैसे तो देखिए तस्वीर कोई किसी तरह भी उतर सकती है, लेकिन इसको इस तरह लिया जा रहा है कि ये तो वाकई ये लगता है कि कुछ करने लगे हैं, जैसा उनकी शक्ल जैसी बनी हुई है।